ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ سرحدی سب ڈویژن دراس کے عوام نے آج دراس کو ضلع کا درجہ دینے کے مطالبے کو لے کر احتجاج کیا۔ ذرائع کے مطابق دراس سب ڈویژن کے مختلف سیاسی، سماجی اور سبھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بعد از نماز جمعہ دراس بازار میں ایک احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جس دوران بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ مظاہرے میں شریک لوگوں نے ہمارے مانگیں پوری کرو، آواز دو، ہم ایک ہے کے نعرے لگا رہے تھے۔ مقررین نے کہا کہ دراس لداخ میں داخل ہونے کا اہم گیٹ ہے اور دراس کو دنیا کا دوسرا سرد ترین علاقہ مانا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ دراس کے عوام نے ہر جنگوں میں فوج کے ساتھ مل کر دشمن سے مقابلہ کیا اور قربانی دی ہے اور ہمیشہ سے ملک کا وفادار رہے گا۔ لہٰذا دراس کے عوام کا مطالبہ ہے کہ دراس کو ضلع کا درجہ دیا جائے۔ احتجاجی مظاہرے کے بعد ایک پریس کانفرنس کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف سیاسی و مذہبی شخصیات نے دراس کے اہم مطالبات کو لے کر خطاب کیا۔ یاد رہے، دراس کو ضلع کا درجہ دینے کی مانگ ایسے وقت میں زور پکڑ رہی ہے جب مرکز کی جانب سے سب ڈویژن زاسکار سب ڈویژن نبرا کو ضلع کا درجہ دینے کی باتیں گردش کر رہی ہے۔ شکریہ اللہ، شکراً جزیلا یا رب العالمین۔ میں تمام عوام الناس کا اور نوجوانوں کا اور بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمامی لوگ اپنے ائمہ اور اپنے لیڈروں کی آواز پر جو جمع ہو گئے، اس پر آپ لوگوں کو دل کی عمیق گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ بجا لاتا ہوں۔ ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہاتھ ابھی سلامت ہے نا؟ ابھی ہاتھ سلامت ہے تو ہاتھ دکھا کر بولو، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہے حق ہمارا، ہے حق ہمارا، ہے حق ہمارا، ہم کیا چاہتے ہیں؟ تو ڈسٹرکٹ، اس کے لیے ابھی تمام ائمہ بھی یہاں موجود ہے اور ہمارے جو لیڈر حضرات ہیں واحد صاحب اور عبدالصمد صاحب، کل ائمہ کی میٹنگ میں بھی اماموں نے زبان دیا، اگر آپ اس عوام کے لیے ایک قدم بڑھائیں گے تو ہم آپ کے لیے اپنا خون کا قطرہ بھی دینے کو تیار ہیں۔ یہ کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے دراس علاقے کا مسئلہ ہے اور ہمارا ہر لیڈر، ہمارا جتنے بھی حکمران ہیں، سب کہتے ہیں کہ دراس لداخ کا چہرہ ہے، دراس لداخ کا اور چہرے کو بگاڑ کر جسم کو سجا رہے ہیں۔ تو بتائیے، نظر چہرے پہ پڑتی ہے یا پہلے جسم میں پڑتی ہے؟ تو پہلے چہرہ سجانا چاہیے، جسم سجانا چاہیے۔ تو حق ہمارا تو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ ہمارا اعتراض نہیں ہے، آپ جس کو چاہے ڈسٹرکٹ دو، ہمیں کسی پر اعتراض نہ ہم کسی آپ گلی گلی ڈسٹرکٹ کھڑا کرو، ہمیں اس پر بھی اعتراض، لیکن ہم حقدار ہیں تو ہمارا حق ہمیں دے دو۔ ہماری مانگ اتنی ہے، ہم حقدار ہیں اور ہم سے ہمارا حق نہ چھینو، ہمارا حق چھین کر دوسروں کے دے گے، یہ بھی ہمیں گوارا نہیں۔ تو ڈسٹرکٹ پہلے دراس والوں کا حق ہے اور انشاءاللہ دراس والے وفادار ہیں اور اس لیے ابھی ہم رستے میں بیٹھے ہیں اور ہم نے اپنی عوام کو کہا ہے اگر ہم علماء کی ضرورت پڑے ہم رستے میں ہفتہ بھی دھرنا دینے کو تیار ہیں اور میرے ساتھ میری پوری قوم تیار ہوگی۔ وہ یاد رکھیے، ہم علماء صرف بولتے نہیں ہیں، جب ہم بولتے ہیں تو کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ ہم بھوکے بیٹھیں گے، ہم نہ جنوری دیکھیں گے نہ فروری دیکھیں گے، ہم صرف اپنی عوام کو ڈسٹرکٹ دیکھیں گے۔ یاد رکھیے، ہم صرف ڈسٹرکٹ ہمارا مقصد، ڈسٹرکٹ ہماری منزل اور ڈسٹرکٹ ہمارا چین، ڈسٹرکٹ ہمارا سکون ہے۔ جب تک اس منزل کو نہیں پائیں گے انشاءاللہ دراس والے چپ نہیں بیٹھیں گے، یہ وعدہ ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولے، ڈسٹرکٹ ہمارا، ڈسٹرکٹ ہمارا، ڈسٹرکٹ ہمارا۔ ہمارے بچے کی
तूफान हमारे घर की खिड़कियों से, हमारे गलियों से, हमारे ऑफिसों से, हमारे स्कूलों से, हमारे दफ्तरों से, हमारे कामों से, हमारे उठने से, हमारे बैठने से एक ही आवाज आनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हमारा, डिस्ट्रिक्ट हमारा, डिस्ट्रिक्ट हमारा, डिस्ट्रिक्ट हमारा, हमें हमारा, हमें हमारा, हमें हमारा, है डिस्ट्रिक्ट हमारा, है डिस्ट्रिक्ट हमारा। और हम बड़े इत्मीनान से, जोशीला खिताब में नहीं, हम बड़े इत्मीनान से कह रहे हैं दोनों लीडरान से, खून का आखिरी कतरा तक हम आपके लिए बहाएंगे अगर आप इस आवाम के लिए रास्ते में आएंगे। याद रखिए, इसमें तमाम अइम्मा का इत्तिफाक है, ये बैठकर ये फैसला किया है। अइम्मा किसी सियासत से, किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन आवाम के लिए अइम्मा लोगों के जूते उठाने के लिए भी तैयार है। ये अइम्मा की खासियत है, हम गुलामी भी जानते हैं तो हम रहबरी भी जानते हैं, तो लिहाजा हम अपनी आवाम के लिए सड़कों में बैठना भी जानते हैं, अपनी आवाम को तख्त देना भी जानते हैं। तो लिहाजा डिस्ट्रिक्ट हमारा हक है। और वाहिद साहब और हमारे समद साहब, आप न डरिए, आपके पीछे पूरी कौम खड़ी है, द्रास का बच्चा बच्चा खड़ा है, यहाँ की बच्चियां खड़ी है, यहाँ के हर हाफिज के मेंबर खड़े हैं, और यहाँ के हर बाशिंदा के कहना है कि समद साहब, वाहिद साहब इंशाअल्लाह द्रास को डिस्ट्रिक्ट लाकर दिखाएंगे। उम्मीद है कि ये हमारी इन बातों पर उतरेंगे। और हुकूमत से गुजारिश है, आप अपने चेहरे को जितना सजाएंगे उतना आपकी इज्जत बढ़ेगी। हम किसी किस्म के कानून को अपने हाथ में लेते नहीं है, हम अदबन गुजारिश कर रहे हैं गवर्नर से भी और MP से भी, द्रास वाले हक है, इन्हें यतीम न बनाओ। जब आदमी यतीम बन जाता है तो फिर आपे से बाहर भी होता है, तो लिहाजा यतीम न बनाओ, इन्हें का हक दो। इंशाअल्लाह हमारा आखिरी नारा है, हक हमारा है, हक हमारा है, हक हमारा। बस वस्सलाम, बाकी तमाम हजरात का शुक्रिया। तो हमारा एक्सप्रेस करने का मकसद ये है कि जनाब रिसेंटली जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा साहब दिल्ली तशरीफ़ ले गए और वहाँ उन्होंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की। वहाँ उन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के लिए मांग रखी। इसके लिए हम उन्हें याद दिलाने के लिए आज एक जलसा किया था। उन्हें मालूम होगा कि द्रास सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का मांग कर रहा है इस लद्दाख रीजन में, क्योंकि द्रास सबसे दुनिया का सबसे सरहद तरीन इलाका है और बॉर्डर एरिया होने के अलावा सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो भी डिस्ट्रिक्ट की मांग कर रहे हैं उनमें सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला एरिया है। द्रास तकरीबन 1250 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे मुश्तमिल है। तो हमने हर वक्त 1979 से लेकर आज तक मांग कर रहे हैं। और आप लोगों को यहाँ बताता चलूँ, जब हमारा लद्दाख एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, लेह जब डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट कारगिल जो था उस वक्त हमारा तहसील हुआ करता था। और सबसे पहली नायबत इस लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में हमारा द्रास था और सबसे पुराना पुलिस स्टेशन भी हमारा द्रास है और हम इसमें सबसे ज़्यादा हकदार थे। तो हमें रिसेंटली जो हमारे गवर्नर साहब ने उधर मांग रखी, उसमें हमारा नाम न होने की वजह से हमने ये आज जलसा और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़हमत की। तो हम आपकी वसादत से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑनरेबल MP, ऑनरेबल होम मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम कारकुन या सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि हमें द्रास को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। बहुत ही आज जैसे जिस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस एजिटेशन पे, उसका द्रास की आवाम के लिए और हमारे जो उलमा हैं और हमारे लीडरान हैं उन सबको का ये मुबारकबादी के मस्तक हैं। जब ये जैसे हमारे लोगों सब ने इस चीज़ को हाईलाइट किया, तो मैं जो एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है, अगर उसकी पॉलिसी है तो ये अच्छी बात है, डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स का भी है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन पे डिसेंट्रलाइजेशन जो है इसको सबसे बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन से आप अगर छोटे छोटे यूनिट्स बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, लद्दाख जो है जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से बहुत वास्ट है। वहाँ नुब्रा से लेके ज़ास्कार से लेके यहाँ द्रास से लेके शकरजीतन सारा एरिया लगा दें हम, तो लद्दाख जो है बहुत एरिया के हिसाब से वास्ट है।
ये वेलकम स्टेप है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोचती है कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स अगर सेपरेट डिस्ट्रिक्ट्स बनाते हैं तो उससे यहाँ के अवाम को फ़ायदा होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जो है पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे हो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे तो इस डिसेंट्रलाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे द्रास की हम मगर एक चीज़ ये कि है नहीं कि हम जो है झांसकार को न देने के इसमें नहीं है, या फिर नुब्रा को न देने, या सांकू को न दे दे, या सफेद चितर को न दे दे, सबको दे दे। जैसे जिस हिसाब से MP साहब ने एक मेमोरेंडम रखा था, एक टाइम में उनका एक मेमोरेंडम आया था जिसमें 8 या 9 डिस्ट्रिक्ट्स का 5 डिस्ट्रिक्ट या 8 या 9 डिस्ट्रिक्ट्स का जो है प्रपोजल किया था। बहुत अच्छी बात है। उसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट की प्रपोजल्स गए हैं उसमें सारे, अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट खोलना चाहते हैं तो हर लिहाज से द्रास जो है उस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स के उस पेरीमीटर, जो एक पेरीमीटर होता है एक क्या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट खोलने का, उस पेरीमीटर्स में द्रास सबसे अव्वल आता है। अव्वल झांसकार से भी आता है, अव्वल नुब्रा से भी आता है, उन पेरीमीटर्स को देखा जाए तो। लेकिन अगर सिर्फ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस में देखा जाए तो ये मैं समझूंगा कि अगर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस में ही अगर डिस्ट्रिक्ट बनाना है तो बड़े अफसोस की बात है। MP साहब से, LG साहब से, होम मिनिस्टर से गुजारिश है कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को न देख के इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन में देखें, क्योंकि हमारा जो इलाका है जोजिला से लेके पूरे उधर हिमाचल तक ये सारा का सारा बहुत सेंसिटिव इलाका है। बिल्कुल ये सामने पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे बॉर्डर है, और ये सारा इलाका स्ट्रेटजिकली जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इस तरह की अगर हम पॉलिटिक्स करेंगे ये हमारी देश के लिए या हमारे इसके लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे ये एरिया जो है, क्यों इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन और इम्पोर्टेंस की वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पे जो है डिसेंट्रलाइजेशन हो, यहाँ पे छोटे छोटे यूनिट्स बने ताकि यहाँ के लोगों को, बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं उनकी तरक्की हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं उनसे कि भाई द्रास को जो है बाकी जगहों, बाकी लोगों डिस्ट्रिक्ट की तरह द्रास को भी जो है डिस्ट्रिक्ट स्टेटस दिया जाए, और द्रास जो है जितने भी पेरीमीटर्स हैं उसमें नंबर 1 आता है। तो हमारा गुजारिश है झांसकार, और क्योंकि हमें ये खबर मिली है मीडिया के वाए कि झांसकार और नुब्रा शायद उन्होंने कंसिडर कर लिया है, एक रिकमेंडेशन गई है। तो हमारी गुजारिश ये है कि भाई द्रास को भी इस रिकमेंडेशन में शामिल किया जाए। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।